Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आप सभी भक्तों का इस 18 इस दिवसीय 18 दिवसीय भगवत गीता कोर्स में जुड़ने के लिए। तो हम तो हम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे करेंगे हमारे स्पीकर हिज ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु जी से। प्रभु जी कैन कैन स्टार्ट योर स्टार्ट योर सेशन सेशन नाउ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भगवद गीता कोर्स सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विशेष रूप से हमारे प्रायोजकों का जिन्होंने भगवद गीता के 18 दिवसीय कोर्स की व्यवस्था की। हरे कृष्णा गुना केंद्र की तरफ से। तो हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने भगवद गीता का एक विशेष अध्याय पढ़ा जो था अध्याय 12। जब अध्याय 7 चालू हो रहा था, तब अगर आपको स्मरण हो तो हमने यह कहा था कि भक्ति योग 7 से 12 नंबर के अध्याय भक्ति योग का खंड है।
7 से 12 नंबर के अध्याय भक्ति योग के खंड है। और भक्ति योग भगवान ने, क्योंकि भक्ति योग बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है जो कि हमने 9वें अध्याय में पढ़ा, इसीलिए भगवान ने उसको मध्य में स्थित किया है भगवद गीता के, है ना। शुरुआत के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग पर आधारित है कि कर्म से किस प्रकार भक्ति करी जा सकती है। मध्य के 6 अध्याय भक्ति पर आधारित है कि भक्ति जो है सार है हर क्रिया का। आखिरी के 6 अध्याय जो हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करके भक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 13वें अध्याय से पहले कल के अध्याय की हम पुनरावृत्ति करते हैं। कल हमने देखा था कि भक्ति योग में विभिन्न चीजें होती हैं, है ना। जैसे कि भगवान को भक्त के कौन से गुण पसंद हैं, भगवान की भक्ति के स्तर क्या हैं, कैसे कैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, द्विभुज श्याम सुंदर रूप को की उपासना करने वाले कैसे मायावादी से श्रेष्ठ होते हैं, ये हमने कल जानकारी ली। आज के अध्याय की पुनरावृत्ति है वाइसेस्ट शॉर्ट फॉर्म इसका, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन माफ करिए, सबसे पहले अर्जुन भगवान से बुद्धिमान प्रश्न पूछते हैं 1 से 7 नंबर के श्लोक, है कि नहीं। फिर ज्ञान की पद्धति, भगवान अर्जुन को ज्ञान की पद्धति समझाते कि किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किसके बारे में करना है, क्या फिल्म के गानों और शायरियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है? नहीं, आत्मा और परमात्मा के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, और इन दोनों में अंतर क्या है वो हमें प्राप्त पता करना है। और आत्मा और परमात्मा के लिए परम पुरुष कौन है, परम पुरुष कौन होता है, भोक्ता कौन है, 20 से 26 नंबर के श्लोक में हम इस पर चर्चा करेंगे। और खोजी से दृष्टा तक, जब एक व्यक्ति खोज प्रारंभ करता है परम सत्य की, और जब वो उस सत्य का दर्शन कर लेता है, तब उसके कौन से गुण होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। और उसके पश्चात दिव्यता, कि दिव्य व्यक्तियों के लक्षण, दिव्य जो व्यक्ति हो जाता है, दिव्य स्तर पर अगर कोई आ जाएगा तो उसके लक्षण कैसे देखने के लिए मिलेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुद्धिमान प्रश्न, तो हम ये देखते हैं कि 12 और 13 अध्याय में अंतर क्या है ना। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 से 6 नंबर के अध्याय कर्म योग के माध्यम से भक्ति प्राप्त करना, 13 से 18 भक्ति योग के माध्यम से ज्ञान योग भक्ति प्राप्त करना, और 7 से 12 भक्ति योग, संपूर्ण भक्ति योग। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई अपना हाथ उठा सकते हैं, और मैं अनुरोध करूंगा कि कोई इसको अगर पढ़ सकते हैं तो अपना कोई हाथ उठा सकते हैं और हम उनको अनम्यूट करेंगे। वैभव प्रभु जी, आप खुद को अनम्यूट करिए और पढ़िए। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? हाँ, ये व्हाइट वाले से। व्हाइट वाले से। यदि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो ज्ञान का वर्णन भक्ति के खंड के बाद क्यों किया जा रहा है? श्लोक 12 दशमलव कितना है में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को मृत्यु सागर से बचाने का वचन दिया था। अध्याय 13 से 18 में कृष्ण भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करके इस वचन को पूर्ण करते हैं। यदि भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान दोनों व्यर्थ हैं। भक्ति योग को भगवत गीता के मध्य में रखा गया है, जहाँ कर्म और ज्ञान दोनों के संपर्क में रहकर उन्हें मूल्य प्रदान करता है। धन्यवाद वैभव प्रभु। भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर हम ज्ञान के माध्यम से भक्ति करते हैं, ज्ञान और उसमें जोड़ देते हैं, कर्म भी उसमें जोड़ देते हैं,
तो भक्ति की सुंदरता और निखर जाती है। ज्ञान और कर्म अगर कोई स्वतंत्र करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो व्यर्थ ही है कि नहीं? जैसे कि भक्ति करना क्या है? भगवान के नाम का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की लीला सुनना। तो ये काफी भाव स्तर पर हो सकता है, लेकिन अगर हम ज्ञान के माध्यम से भक्ति करेंगे, जैसे कि आप भगवद गीता का ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि जो केवल भाव स्तर पे करते हैं, वो चालू करते हैं धीरे धीरे, जैसा कि हमने भगवद गीता के शुरुआत में प्रारंभ में देखा था, बहुत सारे लोग भगवद गीता अटेंड करना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इतना ज्ञान लोगों से झेलता नहीं है। धीरे धीरे लोग छटते रहते हैं, छटते रहते हैं, छटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से जिसको समझ में आया है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दृढ़ होते हैं, है ना? तो ज्ञान से भक्ति की दृढ़ता और बढ़ती है, इसीलिए ज्ञान योग भक्ति को और निखारता है, उन्हें मूल्य प्रदान करता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना? तो 13वां अध्याय में अर्जुन भगवान से, जैसे कि हमने चर्चा की शुरुआत में की, बड़े जटिल प्रश्न पूछते हैं, बड़े जटिल और बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं? क्या पूछते हैं उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अर्जुन सबसे पहले पूछते हैं कि जड़ पदार्थ क्या है, क्योंकि भगवान ने 12वें अध्याय में बताया कि भक्ति योग जो होता है, भक्ति योग करना सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति योग जो करते हैं वो मायावादियों से श्रेष्ठ हैं। भक्तों के क्या गुण हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो भगवान ने बता दिए। लेकिन अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि हे भगवान, जड़ पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है ना? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ये आपके क्विज में भी आ सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जड़ पदार्थ है प्रकृति, जो जगत में प्रकृति है वो जड़ पदार्थ है, और क्षेत्र, क्षेत्र क्या? हमारा शरीर। हमारा शरीर जो है वो विशेष रूप से प्रकृति है। अब पुरुष कौन है? जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। शरीर में निवास करने वाली, शरीर को चलाने वाली आत्मा, और भगवान परमात्मा। ज्ञान क्या है? तो दो चीजें हैं इसमें, एक है ज्ञान और एक है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब ज्ञान के द्वारा जानने योग्य चीज को, वस्तु को ज्ञेय कहा जाता है, जो कि है चेतना। ज्ञान के माध्यम से अभी हम क्या जान रहे हैं? जैसे ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये है ज्ञान, और ये कौन है? भगवान। हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व भगवान 13वें अध्याय में अर्जुन को समझाना चालू करते हैं कि जड़ पदार्थ, पुरुष, प्रकृति, भोक्ता, ज्ञान और ज्ञेय कौन है? है ना? तो भगवान प्रारंभ करते हैं और ये बोलकर, ये समझाकर कि शरीर जो है वो एक कर्म क्षेत्र है। बाहर आप लोग सुनते हैं कि भगवत गीता जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध के समान है, कृष्ण हमारी बुद्धि है, दुर्योधन हमारा मन है, 5 पांडव हमारी इंद्रियां हैं। तो इसी का परिवर्तित वर्जन आपको देखने को मिलता है। लेकिन वास्तव में क्षेत्र, भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र क्या बताया है? हमारा जो शरीर है वो कर्म क्षेत्र है, सारे कर्म शरीर पर होते हैं, और आत्मा एक क्षेत्र का ज्ञाता होता है। अच्छा, आत्मा एक क्षेत्र का ज्ञाता है, तो परमात्मा कौन है? परमात्मा सारे क्षेत्र के ज्ञाता है, है ना? परमात्मा सारे क्षेत्र के ज्ञाता है। जैसे कि मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है, तो उस जमीन के कागजात एक व्यक्ति के पास होंगे, जिसकी जमीन है उसके पास होंगे, और जो जमीन का मालिक है उसके पास होंगे, और एक कॉपी सरकार के पास रहती है कि जमीन किसकी है ना? अभी एक है सरकार और एक है व्यक्ति। सरकार के पास सारे जमीनों के कागज रहते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है कि नहीं? हाँ या ना?
लेकिन उस पर्टिकुलर जमीन के कागज केवल उसके मालिक के पास रहते हैं। ये उदाहरण समझ में आया सबको? इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा है। आत्मा खुद के शरीर के बारे में सब जानती है और परमात्मा उस शरीर के बारे में भी सब जानते हैं और बाकी शरीर के बारे में भी संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच यह भेद है ना। तो कर्म क्षेत्र है हमारा शरीर, जो कि स्थूल और सूक्ष्म तत्व से बना है, जिसमें इंद्रियां हैं, और इन्हीं के परिवर्तन, इन्हीं के मिश्रण से हमें भाव प्रकट होते हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। तो ये कर्म क्षेत्र, इसी में परिवर्तन होते हैं, इसी शरीर में हमारे परिवर्तन होते हैं ना। आगे भगवान बता रहे हैं इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न के बाद भगवान बताते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्या बता रहे हैं भगवान? इदम शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन, ये जो शरीर है तुम देख रहे हो, क्षेत्रम इत्य अभिधीयते, ये क्षेत्र है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु, एतद्यो, इसको, वेत्ति, जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है। उसे जानो कि वह क्षेत्रज्ञ है। और केवल क्षेत्रज्ञ क्या हम रहते हैं? हमारे शरीर में क्या चल रहा है देखिए हमें पता रहता है, हमें भी सब कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन परमात्मा को, भगवान को सब जानकारी होती है। आत्मा से भी ज्यादा जानकारी परमात्मा को होती है, और केवल इस शरीर की नहीं, हर शरीर की जानकारी होती है। हमें हमारे शरीर की मुख्य जानकारी रहती है, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं बता सकते कि हमने खाना खाया था कब तक पचेगा, खून शरीर में कैसे बन रहा है। विज्ञान ने अभी तक ये प्रक्रिया सुलझाई नहीं है। जानकारी दे सकते हैं कि खून में ये होता है, खून ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन बना सकते हैं नकली? नहीं। है ना। तो परमात्मा सारे शरीरों के ज्ञाता हैं। इसलिए दोनों में अंतर भगवान क्या बता रहे हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, शरीर तथा इसके ज्ञाताओं को जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों का ज्ञाता हूं अर्जुन, मतलब सारे शरीरों का स्वामी हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, मतलब शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही मेरे मत के अनुसार ज्ञान है, अन्यथा यह ज्ञान नहीं है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में अंतर समझना जरूरी है। क्षेत्रज्ञ में भी दो क्षेत्रज्ञ की ज्ञाता है, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो यह किस प्रकार एक व्यक्ति अन्य कोशों में अपने जीवन यापन करता है, क्या कोई इसको पढ़ना चाहेगा? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं, अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं कोई इसको पढ़ना चाहता है तो। वैभव प्रभु के अलावा कोई पढ़ना चाहेगा तो हाथ ऊपर कर सकता है, 2 सेकंड का टाइम है, नहीं तो फिर वैभव प्रभु जी पढ़ेंगे। पढ़िए प्रभु जी। अन्न में भोजन सर्वोच्च लक्ष्य है। स्थूल प्राण में अपने जीवन को संरक्षित करना चाहता है। स्थूल ज्ञान में मन, बुद्धि, भावनाओं, सौंदर्य शास्त्र आदि की सूक्ष्म परस्पर क्रियाओं की सराहना करता है और उन्हें सर्वोच्चता मानता है। विज्ञान में आत्मा या ब्रह्मा सर्वोच्च लक्ष्य है। आनंद में व्यक्ति उसके और परमात्मा के बीच के भेद को अनुभव करता है और परमपिता परमात्मा के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करता है। धन्यवाद वैभव प्रभु। वास्तव में देखिए, ये अलग अलग कोश एक जीव के अंदर होते हैं। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश मतलब हमने पहले चर्चा की है कि वो केवल खाने के बारे में सोचता है, मर जाएगा लेकिन खाएगा। मिर्ची का पसंद है तो मिर्ची का खाएगा। देखे ना ऐसे लोग, खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं, हालांकि मैं भी हूं, लेकिन खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं
शरीर से पसीना निकल रहा है, सर से पसीना निकल रहा है, अरे वो चिली पनीर खा रहे हैं, मंचूरियन खा रहे हैं, एकदम ऐसा गरम गरम, मुंह में आग लग रही है, मर जाएगा वो व्यक्ति। इतना तीखा खा रहा है कि सुबह उठेगा तो निकलेगा नहीं शरीर से, लेकिन खाने का इतना शौक है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश खुद के जीवन को संरक्षित करना चाहता है, बस सर सलामत तो पगड़ी हजार। ज्ञानमय कोश, उसके जीवन का लक्ष्य है ज्ञान की सूक्ष्म क्रियाओं को समझना, सराहना करना, उन्हीं के बारे में स्मरण करना, है ना। इमोशनल जिसको बोलते हैं। विज्ञानमय कोश, आत्मा या ब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। और उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ कोश जो होता है वो है आनंदमय कोश। आनंदमय मतलब आत्मा और परमात्मा के मध्य का भेद समझने वाला व्यक्ति, संपूर्ण तत्व ज्ञान धारण करने वाला व्यक्ति, प्रेम पूर्वक संबंध जो भगवान से बनाता है, उसे परम आनंद प्राप्त होता है ना। ये होता है आनंदमय कोश। इसलिए भगवान, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। ये श्लोक याद, श्लोक नहीं याद तो कम से कम आप यहाँ के तत्व याद करें कि भगवान शरीर की संरचना बता रहे हैं। महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। तो 24 तत्व हैं इस भौतिक जगत में, याद रखिएगा 24। कौन कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, है ना। 5 ज्ञान इंद्रिया, ऐसे अंग शरीर के जिनसे ज्ञान अर्जित किया जाता है। कौन कौन से? नेत्र, आंख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, शरीर के वो अंग जिनसे कार्य किया जाता है। वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। 5 विषय जिनके लिए कार्य किया जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध। कितने हो गए? 20। इसमें से 3 है मन, बुद्धि, अहंकार। सूक्ष्म तत्व हैं ये प्रकृति के। और तदोपरांत ये सारे अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त अवस्था में कहाँ रहते हैं? प्रधान में, महत तत्व में। और इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। इन्हीं सारे तत्वों की संरचना, कॉम्बिनेशन, यहां वहां का मिश्रण, उसी से शरीर बनता है। शरीर इन्हीं चीजों से तो बना है ना। इसीलिए विश्लेषण करने पर कार्य क्षेत्र समझा जा सकता है। इसीलिए ये चारों जो तत्व हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। संख्या पूर्वक हम तत्व का ज्ञान करते हैं, उसे सांख्य योग कहा जाता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। वैसे ये चैप्टर, अगर ये अध्याय अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो लगेगा बहुत बोरिंग है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। बहुत रोचक तथ्य भगवान इसमें बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शरीर की सृष्टि और गुण किस प्रकार हैं और इसमें विकार कैसे आते हैं। शरीर में विकार कैसे आते हैं, कोई बता सकता है? शरीर में विकार क्या आता है? ये बता रहे हैं, जैसे उसको गुस्सा आ रहा है, ये प्रेम पूर्वक बेस्ट फ्रेंड है, कोई खुश है, प्रसन्न है, कोई दुखी है ना। और शरीर में क्या विकार आते हैं? शरीर बड़ा होता है, सर जो बूढ़ा होता आवाज आ है। रही है आवाज आ रही? सर, जो लालच है वो भी सर विकार में ही इंक्लूड है सर। हाँ, लिखा है ना उसमें इच्छा। ये देखो, हम श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पर। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एत क्षेत्र समासेन सविकार मुदाहरितम। तो मन का विकार है लालच। मन, बुद्धि, ये शरीर में है हमारे 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व। सारे तत्वों के विकार शरीर के विकार ही हैं, है कि नहीं? इसके बाद
भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि किस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञान लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्रज्ञों में आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, वास्तव में ज्ञान है, ज्ञान के बारे में ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए आत्मा परमात्मा का। और वास्तव ज्ञान क्या है, आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अंग भगवान ये 13 नंबर में 8 से 12 नंबर श्लोक में बताएंगे, है कि नहीं, कि जानने योग्य क्या है और ये ज्ञान के अंग कौन कौन से हैं, क्या लक्षण रहते हैं उन लोगों के जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और वास्तव में ज्ञान क्या है ना। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, विस्तार से समझाया जा रहा है कि ज्ञान है 8 से 12 नंबर श्लोक में जो वर्णित अंग है उनको विकसित करना। और इससे क्या ज्ञात होगा हमें, ये क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। आत्मा परमात्मा के अधीन रहती है हमेशा, और परमात्मा सर्वव्यापी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे है ना। तो ये हम श्लोक पढ़ते हैं। एक्चुअली ये श्लोक मैंने बहुत कॉलेजेस में दिया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो ये श्लोक हमें, अगर इस श्लोक को किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो काफी हद तक ज्ञान, काफी हद तक नहीं, संपूर्ण ज्ञान उसे मिलेगा। भगवान बता रहे हैं, अगर आप आखिरी लाइन स्क्रीन पर देखें तो एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, ये जो मैंने अर्जुन तुम्हें बताए ये ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है वह ज्ञान क्या, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति मार्जवम आचार्योपासनम शौचम। अमानित्वम, अमान रहना, विनम्र रहना, अदम्भित्वम, घमंड नहीं करना, अहिंसा, अहिंसा में रहना, शांतिर आर्जवम, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा ना करना, हमेशा संतुष्ट रहना, आचार्य उपासनम शौचम, आचार्य उपासनम, गुरु की उपासना करना, शौचम, साफ सुथरा रहना, स्थैर्यम, स्थिर रहना, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियों पर निग्रह रखना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के जो अर्थ हैं उनसे वैराग्य हासिल करना, अनअहंकार एव च, कभी अहंकार न करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो वास्तव में समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनमें दोष देखना चाहिए, मजा नहीं आना चाहिए। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का जन्म हुआ है या किसी का जन्मदिन है तो हमें सोचना चाहिए कि हम मृत्यु की ओर निकट आ गए हैं, 1 वर्ष और मृत्यु के समीप आ गया है। क्योंकि बाहर की दुनिया जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दोष नहीं देखती। जन्म होता है तो बर्थडे मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। कर्मों के विकार के कारण हम इस दुनिया में पैदा हुए तो खुश होने की जरूरत नहीं है। असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दारा गृहादिषु, सबसे महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि अनन्य योगेन, अनन्य भाव से क्या करना चाहिए, भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्ति करनी है कैसी, अव्यभिचारिणी, व्यभिचार मतलब आपका किसी संबंध है और आप दूसरा अफेयर करते हो, उसको व्यभिचार कहा जाता है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो केवल भक्ति करो, भक्ति के अलावा कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो होती है अव्यभिचारिणी भक्ति, है ना। अंत में भगवान क्या बताए, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, अर्जुन ये ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है वह सब अज्ञान है ना। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है, आत्मा और परमात्मा का। क्योंकि भगवान अब अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है, आत्मा और ज्ञान क्या है। ज्ञान है भक्ति के ये अंग जो भगवान ने बताया, और ज्ञेय कौन है, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, ज्ञात करने योग्य वस्तु, वो है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध, दोनों में अंतर क्या है, दोनों होते क्या है, उससे होगा क्या। चलो हम आत्मा परमात्मा के बारे में जान लेंगे तो होगा क्या, हम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकें, अमृतम अश्नुते,
नित्य सुखी रह सकेंगे, नित्य शांत रह सकेंगे, एक उच्चतम रस का आस्वादन कर सकेंगे। 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते, नित्य आस्वादन मिलेगा। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन सादरुच्यते। इसलिए भगवान और जीवात्मा के बीच का ज्ञान और संबंध होना बहुत जरूरी है। अभी आत्मा और परमात्मा दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी होते हैं। और कुछ निम्नलिखित गुण भगवान परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। क्या? सर्वव्यापी हैं, जो कि आत्मा नहीं है, दिव्य है। आत्मा भी दिव्य है, लेकिन परमात्मा भी दिव्य है। सभी विरुद्ध परिस्थितियों में समन्वयी, हमेशा शांत रहते हैं, सारी स्थितियों में समान रहते हैं, अविभाजित, पार्शियलिटी नहीं करते भगवान, विभाजन नहीं करते, विवाद नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, है ना। अविभाजित पोषक और संहारक, हमने की पहले ही चर्चा की है इस बात पे कि भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, संहार करते हैं और पालन भी करते हैं, है ना। और प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवत गीता से इस चीज का सबूत मिलता है। क्या? भगवान बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञान ज्ञेयम, जानने योग्य ज्ञान मेरे लिए रखो अर्जुन। और मैं कहां पर मिलूंगा? हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, सर्वस्य, सबके हृदय में मैं वास करता हूं अर्जुन, है ना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार वो सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं, है कि नहीं। प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? देखिए, जो आत्मा है वह प्रकृति है। प्रकृति मतलब क्या होता है? जिसका भोग किया जाता है। पुरुष मतलब जो भोग करता है। तो इसीलिए जैसे कि आत्मा जब शरीर से खुद की पहचान करता है तो सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर आत्मा जान जाए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई बोल सकता है कि अरे कितना काला है तू, काला कलूटा बैंगन लूटा, जूता पॉलिश से भी काला कलर है तेरा। अभी हमको बुरा लग जाएगा कि अरे मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं गोरा बन के दिखाऊंगा, एक दिन बदला लूंगा। लेकिन अगर हम ये समझ जाए कि ये शरीर तो हमें कर्मों की वजह से मिला है, वास्तव में तो हम आत्मा है, तो क्या हमें उतना फर्क पड़ेगा कि हम कर्मों में कुछ नहीं कर सकते। केवल इतना ज्ञान होने पर हम कर्मों को बदल नहीं सकते, उसमें विकार नहीं ला सकते। इसलिए अगर हम आत्मा के स्तर पर होते हैं तो अपने आप ही हम समन्वयी हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि पुरुष और प्रकृति आपस में एक दूसरे का समन्वय नहीं कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जाने, है कि नहीं। क्योंकि पुरुष है परम पूज्य भगवान, प्रकृति है ये शरीर, हमारी आत्मा, और उनका समागम कैसे होता है? समागम कैसे होता है हमने पहले ही बताया। 24 जो तथ्य बताए हैं, 24 तत्व बताए हैं, ये सारे आपस में मिश्रण होके शरीर का निर्माण करते हैं। और शरीर का जब निर्माण हो जाता है तो इसी शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। विकार मतलब ऐसा नहीं हाथ टूट जाता, नहीं, सुख दुख इच्छा द्वेष हानि लाभ क्रोध लालच, है कि नहीं। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति या कोई जीवात्मा विकार उत्पन्न अपने शरीर में करता है
इसीलिए वो माया में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो माया को पुरुष मानता है, माया का आश्रय ले लेता है भगवान की जगह, इसलिए वो परेशान होता है ना। प्रकृति और पुरुष तो सनातन है। अब इसमें शरीर सनातन नहीं है, प्रकृति और पुरुष सनातन है, हमेशा रहेंगे, नित्य काल तक रहेंगे, उनकी भूमिका भी सनातन है। लेकिन फिर अगर सनातन है तो शरीर का निर्माण कैसे होता है? 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पुरुषः प्रकृति स्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। 3 गुणों से जब प्रकृति और पुरुष का समागम होता है तब कारणम गुणो संगोऽस्य, 3 गुणों के प्रभाव से, मिश्रण से, सद असद योनि जन्मसु, अच्छे और बुरे योनि में एक जीव का जन्म होता है ना। इस प्रकार जो जीव है, गुणों के साथ उसकी संगति होती है, उसी के कारण अलग अलग शरीर वो प्राप्त करता है। ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए ये ज्ञान अगर कोई व्यक्ति विकसित कर लेगा तो भक्ति का भाव उसका और दृढ़ हो जाएगा। कि कल हमने देखा कि भक्तों का गुण क्या होता है, वो किसी भी स्थिति में स्थिरता नहीं खोते, अस्थिर नहीं होते है ना। भगवान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, भाव स्तर पे भी और ज्ञान के स्तर पर, है कि नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति इस बुद्धि को, इस ज्ञान को समझ लेता है, देखिए अगर हम अपने आप से खुद के प्रयास से ज्ञान समझने का प्रयास करते तो आपको लगता है हम कभी समझ पाते? कभी नहीं, है कि नहीं। इसलिए वास्तविक पुरुष कौन है, अल्टीमेट पुरुष कौन है, टॉप मोस्ट पुरुष कौन है, बेस्ट पुरुष कौन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? परमात्मा। जिनके क्या लक्षण है? उपद्रष्टा। परमात्मा पुरुष हैं और आत्मा प्रकृति है। आत्मा की हर क्रिया पर परमात्मा की नजर रहती है। अनुमंता, उनकी अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता, वो ही है भरण करने वाले, भोक्ता, भोग करने वाले भी वही है। महेश्वर, सारे जगत की ईश्वर कौन है? परमात्मा। परमात्मेति चापि युक्तो, ऐसे परम पुरुष को अर्जुन परमात्मा कहा जाता है। देहस्मिन् पुरुषः परः, देह से, देही से ये ऊपर है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ना, सब भूयो अभी जायते, वो व्यक्ति जो पुरुष, प्रकृति और गुणों के समागम को समझ लेता है, मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है ना। मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है। अब आगे भगवान बताएंगे कि बंधन से, इस जगत के बंधन से निकलने का साधन क्या है ना, वो भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं। तो भगवान इस अगले श्लोक में अलग अलग प्रक्रिया, जिसमें कि ध्यान योग भी आता है, ध्यान जो लोग करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अलग अलग प्रकार के योग से भी मुक्ति का द्वार खुल सकता है, लेकिन बड़े कठिन प्रयास हैं सारे। इसलिए सबसे सरल कौन सा है? भगवान के बारे में श्रवण करना, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। केवल श्रवण अगर हम करेंगे भगवान के ज्ञान का, आत्मा, परमात्मा, भगवान के ज्ञान का, हमारे जीवन के लक्ष्य का, उससे हमारी सिद्धि हो जाएगी। ते अपि चाति तरन्त्येव, ते अपि चाति तरन्त्येव, तरण हो जाता है उनका। मृत्युम,
श्रुति परायणा। मृत्यु से उनका तरण हो जाता है। कैसे? जैसे कोई खाने के लिए परायण होता है, गर्लफ्रेंड परायण, ये जो भक्त होता है वो क्या होता है? श्रुति परायण, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहता है ना। भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करके ये जो भक्त है, यह मृत्यु को तार लेता है, जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाता है ना। अभी भगवान बताते हैं कि ये जो श्रवण करने का माध्यम है, प्रक्रिया है, इसका विस्तार से वर्णन करेंगे और इसको समझ लेने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। ज्ञान चक्षु कौन विकसित करता है ना। उसमें क्या देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति है जो ज्ञान विकसित करना चाहता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, खोजी से दृष्टा बन चुका है, उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। सबसे पहला लक्षण वह ये समझता है कि जो भी जगत में दिख रहा है, जो भी वास्तविकता में जगत में दिख रहा है, केवल पुरुष, प्रकृति और 3 गुणों का मिश्रण और संयोग है बस। कोई भी अलग पृथक वस्तु उसे दिख रही है तो वह पुरुष, प्रकृति और गुणों का मिश्रण है बस। और ऐसी दृष्टि जो रख सकता है शास्त्र चक्षु, उसके लिए उसके क्या परिणाम होते हैं, उसका क्या वर्णन है। समम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सबको समान रूप से देखता है, इसीलिए सबसे प्रेम भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता। शांति लाने के लिए दुनिया में केवल एकमात्र उपाय प्रिय मित्रों, अगर आत्मा का ज्ञान हर व्यक्ति को दिया जाए, अपने आप ही जगत में भाईचारा और शांति आ जाएगी, क्योंकि हम सबको समान रूप से देखेंगे और आदर करेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु, क्यों सबको समान समझता है, क्यों सबको वो आदर करता है, क्योंकि तिष्ठन्तम परमेश्वरम, उसे पता है कि इसके अंदर, आत्मा के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा का प्रवास है और परमात्मा का प्रवास है। क्योंकि इसके हृदय में भी परमात्मा का प्रवास है, मेरे हृदय में भी परमात्मा का प्रवास है, इसलिए मुझे इसका आदर करना चाहिए। इसलिए हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं, कोई भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, नमस्ते, नमस्कार। क्यों? क्योंकि हम हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करते हैं, और जहां पे भगवान रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, मंदिर। तो अगर कोई ज्ञान विकसित कर ले तो उसका शरीर भी एक चलता फिरता मंदिर होता है। आसान नहीं है करना। इसीलिए हमें सबके साथ आदर से रहना चाहिए। अब ऐसा मत करना कि कल जाके बिच्छू बिठा लेना अपने हाथ पे कि प्रभु जी ने बोला तो सबको आदर करना चाहिए। नहीं, हर जीव का अलग अलग तरीके से आदर करना होता है। बिच्छू को आदर करना है तो उसे दूर रह के करो। और इसका और क्या परिणाम होता है, न हिनस्त्यवर अनात्मानम ततो याति पराम गतिम, ऐसा व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होता, कभी भटकेगा नहीं, उस पे संपूर्ण रूप से भरोसा किया जा सकता है। ये महानता होती है ऐसे भक्त की जो संपूर्ण रूप से ज्ञान को विकसित करता है, आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध समझ लेता है ना। अभी दिव्यता, दिव्य क्या है, क्या दिव्यता है, जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, कभी भ्रष्ट नहीं होता, हमेशा लोगों को समान समझता है, इसकी दिव्यता क्या है। उसके और क्या दिव्य गुण होते हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं, कि वह देखता है, क्या देखता है, कि वास्तव में ना तो वह और ना ही कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। कार्य कौन कर रहा है, हमने पहले ही चर्चा की। उसे समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति, अब ऐसा देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, हम अगर ऐसा समझेंगे तो हम क्या समझेंगे
कह रहे कोई भी कार्य नहीं कर, जो काम कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो गलत भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। ये किसी का प्रश्न हो सकता है? भगवान सबको स्वतंत्र इच्छा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, परिणाम इसका क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति में हमें कोई बुराई दिखती है तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति जो कर रहा है इसका पुराना गुण कर्म का समागम है। तो गुण कर्म क्षेत्र प्रकृति इससे ये करवा रहे हैं, धीरे धीरे इसे सुधरने का मौका देना चाहिए। इसीलिए जो भगवत भक्त होता है बड़ा सहिष्णु और सहनशील होता है, केवल इसलिए। है ना? तो ये समझना इसलिए आवश्यक है। समझ में आता है क्या कि शरीर कार्य करता है, लेकिन जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो शरीर से पृथक है। शरीर गुण का समागम ये पुराने कर्मों के हिसाब से मिला है, पुराने कर्म के हिसाब से वो शरीर मिला है, लेकिन जीवात्मा तो स्थिर है। आत्मा शरीर में कभी लिप्त नहीं होती, चिपक नहीं जाती है उसमें, है कि नहीं? पृथक है जीवात्मा, शरीर से अलग रहता है हमेशा। प्रकृति और जीव के बारे में दृष्टि विकसित करता है वो भगवत भक्त, जब इस ज्ञान पर पहुंचता है और देखता है कि सभी जगह जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। इसलिए आत्मा ना कुछ करता है ना किसी चीज में लिप्त होता है ना? आत्मा शरीर में कभी लिप्त नहीं होती है। उदाहरण क्या दिया जाता है? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आकाश जो है, आसमान पूरी जगह फैला है। ऐसी कोई जगह है जहां आसमान नहीं है? क्या ऐसी कोई जगह है जहां आसमान नहीं है? नहीं, हर जगह आसमान फैला हुआ है, लेकिन कभी दूषित नहीं होता। ऐसा नहीं है बादल आए तो आसमान गीला हो गया, सूरज आया तो पीला हो गया, शर्म आ रही तो लाल हो गया। नहीं, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी दूषित नहीं है। उसी प्रकार आत्मा हमेशा पवित्र रहती है। किस प्रकार? जैसे सूर्य डेली उगता है, इतनी सारी दूषित चीजों को टच करता है कि नहीं? सूर्य पत्तों में लगता है, पेड़ पौधों में लगता है, शरीर पर लगता है, मल मूत्र में लगता है, लेकिन सूर्य की किरण क्या कभी अपवित्र, गंदी, दूषित होती है? नहीं। उसी प्रकार एक आत्मा अपने शरीर से, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर में स्थानांतरण करती है, लेकिन कभी दूषित नहीं होती। ये अंतर होता है आत्मा में और शरीर में। शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। और इस प्रकार जो व्यक्ति ये सारे ज्ञान के अंग विकसित कर लेता है, तो 13वें अध्याय का श्रुति फल बताया गया है। श्रुति फल मतलब इसको सुनने, जो आज हम कर रहे हैं, हम 13वां अध्याय सुन रहे हैं, इसका श्रुति फल क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं, इन दोनों के बीच का क्या? अंतरम ज्ञान चक्षुष। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, ये ऐसा ज्ञान चक्षु किसी ने अगर बना लिया है। ज्ञान चक्षु का मतलब क्या होता है कि जब हम देखें किसी वस्तु को तो ज्ञान के माध्यम से देखें। जैसे जब हम जहर को देखते हैं, आपने देखा लिखा है पॉइजन, तो क्या आप उसको देखेंगे? नहीं, ज्ञान के माध्यम से देखेंगे कि अगर इसको मैंने गलती से पी लिया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हम विश्व की हर वस्तु को देखें। और क्या होगा? भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ऐसा व्यक्ति अगर क्षेत्र क्षेत्रज्ञों के ज्ञान चक्षु के रूप में विकसित कर लेगा, तो इस प्राकृतिक जगत से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, मुक्त हो जाए, क्योंकि वो परम ज्ञानी है। ये विदुर्यान्ति, ऐसा विद्वान है, ऐसा ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा।
इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, इस दुनिया के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई इस ज्ञान चक्षु का ज्ञान, इस भगवद्गीता का ज्ञान, इस पुरुष प्रकृति तथा चेतना का ज्ञान अपने जीवन में रखता है तो, है ना। इस अध्याय की पुनरावृत्ति हम करते हैं। यहाँ पे हमने देखा वाइसेस्ट बुद्धिमान अर्जुन के बुद्धिमान प्रश्न और भगवान ने उनको उत्तर दी। ज्ञान की पद्धति, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध किया। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी। पुरुष, पुरुष कौन है? परमात्मा परम पुरुष है। खोजी से दृष्टा तक क्या क्या गुण होते हैं, और दिव्यता, दिव्य गुण व्यक्ति में जब विकसित होंगे तो उसके कौन से गुण होते हैं, और अंत में श्रुति फल। कोई अगर व्यक्ति ये 13वां अध्याय पुरुष प्रकृति चेतना इसका पारंपरिक रूप से श्रवण करता है तो इस भव बंधन से वह मुक्त हो जाता है। काफी तत्व ज्ञान वाला ये अध्याय है, लेकिन अगर किसी ने ये समझ लिया तो अध्यात्म उसका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 13 से 18 अध्याय तक सारे ही सत्र जो हैं वो काफी ज्ञानमयी हैं, काफी इंटेलेक्चुअल हैं। ये सामान्य जनता की समझ में आने वाले भी नहीं। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आशा जी प्रश्न पूछ रही हैं आज के लेसन की समरी क्या है। समरी यही है कि हमें समरी क्या है कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ दो हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का अंतर, आत्मा इस शरीर का ही ज्ञाता है, परमात्मा संपूर्ण विश्व के सारे जीवों के शरीर के ज्ञाता है। और इन दोनों के बीच का अंतर जो समझ लेता है, संपूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति के पास होता है। क्षेत्र और क्षेत्र के बीच में अंतर क्या है? शरीर, आत्मा और परमात्मा। शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये 3 शब्द याद रखिएगा। शरीर क्या है? 24 तत्वों से बना है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा परम पुरुष है। ये 3 वस्तु आज जानने के लिए है ना। तो ये आज की समरी है, ये आज का सारांश। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो वैभव प्रभु जी का क्वेश्चन है कि आत्मा की स्टार्टिंग कब से हुई। जैसा कि हमने हमारे सत्र में समझा कि आत्मा और परमात्मा सनातन काल से ही है। आत्मा की कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है कि 2019 में हुई। नहीं, शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर का संहार होता है, शरीर नष्ट होता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। देखिए, परमात्मा हमेशा से है, नित्य है, और परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो आत्मा का कोई उत्पत्ति होगी? कभी नहीं, है कि नहीं? जैसे आप पूरा सेब खाओ और गुलाब जामुन खाओ, वही टेस्ट आएगा। थोड़ा सा खाओ चिंदी, वही टेस्ट आएगा, है ना। तो वही लक्षण आत्मा परमात्मा के होते हैं। बस परमात्मा परम पुरुष है, परमात्मा। भगवान को किसने बनाया? हाँ जी, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई भगवान को बनाता तो भगवान को बनाने वाला खुद भगवान हो जाता। भगवान हमेशा से है। इस जगत में किसी ना किसी चीज की सृष्टि हुई होती है, और ऐसे ही अगर हम देखते चले जाएंगे किसकी सृष्टि कैसे हुई, अंत में भगवान तक पहुंचेंगे। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से थे। इसीलिए भगवान ने जीवों का निर्माण किया खुद के आनंद विस्तार के लिए, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अगर नहीं है तो यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है, 9 बज चुके हैं। हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी पार्टिसिपेंट्स का फॉर ज्वाइनिंग दिस गीता कोर्स।
आशा करते हैं हम लोग कि आप लोग क्विज फॉर्म कर रहे होंगे। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।